ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس کا موبائل مسلسل وائبریٹ ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ وائبریٹ ہوتے موبائل کو اٹھا کر اس نے فریج کے اوپر رکھ دیا اور خود دوبارہ سے کیک کی چیزیں تیار کرنے لگی۔ آج وہ بیکنگ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اور اس نے سوچا کہ وہ کیک بنائے، لیکن ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ دوبارہ سے موبائل وائبریٹ ہونے لگا۔ پتہ نہیں کس کو مصیبت آ گئی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ صاف کپڑے سے پونچھتے ہوئے جھنجھلاتے ہوئے کہا اور پھر فریج کے پاس آ کر موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے احتیاط سے کال اٹھا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ گھمبیر آواز گونجی۔ کیا آپ زرناب بات کر رہی ہیں؟ اپنا نام سن کر اس نے فوراً سے موبائل کان سے ہٹایا اور سوچنے لگی اسے میرا نام کیسے پتا۔ پھر دوبارہ سے کان سے لگا لیا اور احتیاط سے بولی، جی ہاں میں زرناب ہی بات کر رہی ہوں۔ آپ کون؟ اس کے سواریہ انداز پر سامنے والے نے اس سے بتایا کہ کچھ دن پہلے ہی آپ کا سی وی موصول ہوا ہے، اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی، اگر آپ کے پاس کچھ ٹائم ہو۔ دراصل میں آپ کا انٹرویو اسکیجول کر رہا ہوں، کل صبح 9 بجے انٹرویو ہے۔ لوکیشن وغیرہ آپ کے واٹس ایپ پر میں نے سینڈ کر دی ہے، دیکھ لیجئے گا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی۔ کتنا بدتمیز ہے، آگے والے کا جواب سننے کا انتظار بھی نہیں کیا اور منہ پر کال کاٹ دی۔ شرم بھی نہیں آتی۔ لڑکی کے منہ پر کال کون کٹ کرتا ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی اور پھر اس نے اپنا واٹس ایپ آن کیا تو وہاں پر تھوڑی دیر پہلے کا ایک میسج آیا ہوا تھا۔ کام میں مشغول اس نے میسج دیکھا ہی نہیں تھا۔ کافی دن ہو گئے تھے اسے اس جگہ اپلائی کیے ہوئے اور وہ بالکل نا امید ہو چکی تھی، لیکن آج اسے کال آئی تو اس کے چہرے پر ایک انجانی سی خوشی چھا گئی۔ اس جاب کی اسے بہت ضرورت تھی۔ جب سے اس نے اپنی پہلی جاب چھوڑی تھی، اس کے پاس موجود ساری سیونگز ختم ہونے کو تھیں اور اب اسے لگ رہا تھا کہ جاب کرنا حد سے زیادہ ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ اپلائی کرنے کے بعد اسے ایک جگہ سے انٹرویو کی کال آ ہی گئی تھی۔ اس نے کیک کو وہیں پر چھوڑا اور اندر آ کر الماری کھول کر کپڑے دیکھنے لگی کہ کل کون سے کپڑے پہن کر جاؤں۔ اس کے پاس تجربہ بھی تھا اور ڈگری بھی تھی، لیکن شاید قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اتنے مہینوں بعد جا کر اسے جاب کے لیے کال آئی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ گھر رہ کر وہ بالکل پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ اپنی فائل میں رکھے، ہر چیز وہ تیار کر کے رکھنا چاہتی تھی۔ اب اسے بے تابی سے صبح کا انتظار تھا۔ اس نے فون کر کے اپنی کزن کو بھی بتا دیا تھا۔ اس کی کزن کچھ عرصے کے لیے دوسرے شہر گئی ہوئی تھی، ورنہ وہ اس کے ساتھ ادھر ہی رہتی تھی اور اس کی روم میٹ بھی تھی، لیکن جس کنسٹرکشن کمپنی میں وہ کام کرتی تھی اس کی طرف سے کچھ دن کا بزنس ٹور تھا اور اسے بھی وہاں جانا تھا۔ اس کی کزن کا نام ہانیہ تھا اور وہ اس کے بنا بہت بور ہوتی تھی۔ دونوں کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بچپن کی دوستیں بھی تھیں۔ دونوں کی فیملیز دوسرے شہروں میں رہتی تھی۔ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں اس شہر میں آ کر دونوں نے ہاسٹل میں رہنا شروع کیا اور پھر یہیں پر جاب بھی شروع کر دی۔ اس شہر کی دونوں کو اتنی عادت ہو گئی تھی کہ واپس جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ مہینے میں ایک بار گھر جا کر ہو آتی۔ اس کی اماں بہت بار کہتی تھی کہ اب تم گھر واپس آ جاؤ، اب کیوں وہاں رہ رہی ہو؟ پہلے تو پڑھائی کا بہانہ تھا، اب تم نے نوکری کرنا شروع کر دی۔ گھر میں کوئی پیسے کی کمی ہے کیا جو تم نوکری کرنا چاہتی ہو؟ لیکن وہ ہمیشہ اپنی اماں کو یہ بات کہہ کر ٹال دیتی کہ جب تک میری شادی نہیں ہوتی تب تک مجھے میری مرضی کی زندگی جینے دے، باقی سب شادی کے بعد دیکھا جائے گا۔ پتہ نہیں شادی کے بعد مجھے نوکری کرنے کی اجازت ملے یا نہ ملے۔ یوں اس نے اپنی ضد منوا لی۔ ویسے بھی اس کے والدین اس کی ہر ضد مان لیتے تھے۔ وہ اکلوتی بیٹی تھی اور اکلوتی ہونے کے ساتھ ساتھ نخریلی بھی تھی۔ اس کی کزن کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، اسی لیے وہ بیچاری مجبوری میں نوکری کرتی تھی، لیکن یہ شوق میں نوکری کر رہی تھی۔ اسے اپنا خرچہ خود اٹھانے کا شوق تھا۔ پہلے اس نے ایک آرکیٹیکچر کمپنی میں نوکری شروع کی،
लेकिन वहाँ पर एक दिन अपने मैनेजर से झगड़ा होने की वजह से इसे नौकरी से निकाल दिया गया, बल्कि यूं कहें कि इसने खुद ही नौकरी छोड़ दी। और वो मैनेजर 50 साल का होकर भी इसे बहुत परेशान करता था, इसे गलत नज़रों से देखता था, जिस पर इसने हंगामा खड़ा किया और उसके मुंह पर अपना इस्तीफा मार कर आ गई। मैनेजर ने भी उससे कहा, मैं भी तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। हालांकि उसकी कज़न ने इसे बहुत समझाया था कि तुम आराम से भी इस मसले को हल कर सकती थी, अब तुम कहाँ नौकरी ढूंढोगी। लेकिन इसे कोई परवाह नहीं थी। इसका ख्याल था कि थोड़े ही दिन बाद उसे नई नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसका ख्याल साबित हुआ। बहुत मुश्किलों के बाद अब जाकर उसे नौकरी की उम्मीद मिली थी। ये महीने उसने बहुत डिप्रेशन में गुजारे। हमेशा काम पर ध्यान देने वाला इंसान जब घर पर बैठ जाए तो उसे ऐसे ही बात बात पर गुस्सा आने लग जाता है। पूरा दिन घर पर बेकार बैठकर कभी वो क्या काम करती तो कभी क्या, कभी घर सजाने बैठ जाती तो कभी कुकिंग करने किचन में आ जाती। उसे बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, इसीलिए अक्सर औकात ही कुछ ना कुछ बनाकर मोहल्ले में बांट दिया करती, या मोहल्ले के बच्चों को एक जगह बुलाकर उन्हें केक वगैरह खिला देती थी, जिससे वो बेहद खुश नजर आने लग जाते। हानिया उसे समझाती कि घर में रहने के बजाय बाहर निकलो, घूमो फिरो। अगर तुम यूं ही करती रहोगी तो कब तक अपने आप को घर में कैद रखोगी। तुम्हारी अम्मा का फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि इसे वापस भिजवा दो। वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है और रिश्ते ढूंढ रही हैं। पिछले हफ्ते ही पुप्पो ने एक रिश्ता भेजा है। वो अपने बेटे से तुम्हारी शादी करना चाहती हैं। वही बड़े वाला बेटा जमाल, जो अपने बालों में हमेशा बहुत सा तेल लगा कर रखता है, जिसका बचपन में हम सब मिलकर मजाक उड़ाते थे। जमाल के सरापे को याद करते ही जरनाब ने बुरा सा मुंह बनाया और कहा कि मैं हरगिज भी उस इंसान से शादी नहीं करूंगी। बचपन से ही वो जरनाब के पीछे पड़ा रहता था, ख्वामख्वाह में इसे जिद करता था, जिस वजह से जरनाब ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। और फिर देखते ही देखते उन सारे कज़न से मिलकर जमाल का रिकॉर्ड लगाना शुरू किया। वो हर वक्त अपने बालों में बहुत सा तेल लगा कर रखता था। अक्सर औकात वो तेल उसके माथे से भी बह रहा होता। पढ़ाई वगैरह का उसे कोई शौक नहीं था, बस उसे जरनाब का साथ चाहिए था। और जरनाब जितना उससे चिढ़ती थी वो इतना ही इसके पीछे पड़ा रहता। वो जानती थी उसके माँ बाप वहाँ पर तो इसका रिश्ता हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि जमाल की आदतें उन्हें खुद भी पसंद नहीं थी। वो अक्सर ही नशा वगैरह भी करता था। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी अम्मा हमेशा उसका साथ देती और कहती कि मेरे बेटे को किस चीज़ की कमी है, इसके पास ज़मीनें हैं, पैसा है, सब कुछ है। अगर थोड़ा बहुत गलत काम करता भी है तो इसमें बुराई ही क्या है। पैसा सारी बुराइयों को मिटा देता है। देखना, इसे बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। उनका ख्याल था कि जरनाब के माँ बाप इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे, इसीलिए बचपन से अपने बेटे के जहन में ये बात बिठा रखी थी कि जरनाब तुम्हारी मंग है और जब बड़े हो जाओगे तो उसी से तुम्हारी शादी होगी। उसके अलावा किसी लड़की की तरफ मत देखना। बेटे को यही सब सिखाते उन्होंने बड़ा किया था, लेकिन जब बड़ा हुआ तो पता चला कि जरनाब और जमाल दोनों के मिजाज काफ़ी हद तक अलग थे। और जरनाब तो उसके पास फटकती भी नहीं थी, फिर भी उसकी पुप्पो ने इसके घर रिश्ता डाल दिया था। वो जानती थी उसके अब्बा साफ इनकार कर देंगे और किसी सूरत इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, इसीलिए उसे कोई ज़्यादा परवाह नहीं थी। अभी उसकी सबसे बड़ी मुसीबत उसकी नौकरी थी, जो कि उसे मिल के ही नहीं दे रही थी। हानिया ने भी उसके लिए कई जगह अप्लाई किया था, अपने ऑफिस में भी बात की थी, लेकिन कहीं पर भी कोई वैकेंसी खाली नहीं थी। सब उससे यही सवाल करते थे कि अपनी पिछली नौकरी क्यों छोड़ी। अगर वो सही जवाब देती तो इसे गुस्से से देकर कह देते कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं। अगली सुबह वो जल्दी जल्दी तैयार हुई और अपनी फाइल्स उठाकर घर से बाहर निकल आई। मेन रोड पर आकर उसने रिक्शा रुकवाया और उसमें बैठ गई। रिक्शा जिस कंपनी के सामने रुका वो काफ़ी मशहूर कंपनी थी। यह भी आर्किटेक्चर की कंपनी थी। उसे उम्मीद थी यहाँ उसके एक्सपीरियंस की वजह से इसे नौकरी मिल जाएगी। दिल ही दिल में दुआएं करती वो अंदर रिसेप्शन पर आई तो सामने ही रिसेप्शनिस्ट खड़ी मुस्कुरा रही थी। इसने उसे अपने इंटरव्यू के बारे में बताया।
रिसेप्शनिस्ट ने लिस्ट वगैरह चेक की और फिर उसे अंदर जाने की इजाज़त दे दी। इंटरव्यू के लिए और भी बहुत से उम्मीदवार वहाँ बैठे इंतज़ार कर रहे थे। जब जरनाब का नाम पुकारा गया तो वो अंदर आई। देखा सामने टेबल पर 25-26 साल का एक लड़का बैठा था। उसने जरनाब को खुशामदीद कहा और बहुत ही अच्छे से बात की। उसकी सीवी वगैरह देखी और सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। ये पहली बार था जब जरनाब से ये नहीं पूछा गया कि उसने अपनी पिछली जॉब क्यों छोड़ी। जरनाब को तसल्ली हुई कि चलो ये जॉब उसे मिल जाएगी। उसका रिकॉर्ड अच्छा था, इसीलिए उन्होंने इससे कहा, हम फाइनल इंटरव्यू के लिए आपको जल्द ही कॉल करेंगे। इंटरव्यू लेने वाले का नाम फरहान था। जरनाब अच्छे की दुआ करती कमरे से बाहर निकली और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि सीढ़ियों से चल कर नीचे जाए। उसकी टांगें वैसे ही दुख रही थीं। उसने जैसे ही लिफ्ट का बटन दबाया, उसी वक्त लिफ्ट खुली और अंदर से एक देव हैकल शख्स निकला। जरनाब ने उसे बरवक्त नहीं देखा और उसे टकरा गई। उसे लिफ्ट में जाने की जल्दी थी और वो इतने बुरे तरीके से उससे टकराई थी कि उसका सर चकरा कर रह गया था। उसे लगा जैसे वो किसी पिलर से टकराई है। उसने गुस्से से सर उठाकर देखा और नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई कि नज़र नहीं आता आपको दिख नहीं रहा कि आगे इतनी बड़ी लड़की खड़ी है, फिर भी उसके सामने आने की क्या ज़रूरत थी? मेरा सर फाड़ कर रख दिया है। ये कहते दुहाइयाँ देते उसने अपने सर पर हाथ रखा। सामने खड़े आकिब शाह ने उसकी इस एक्टिंग पर दिल ही दिल में उसे दाद देते हुए गुस्से से उससे कहा, मैडम, मैं नहीं, आप बिना देखे चल रही थी। आपको नहीं पता कि चलने का तरीका क्या होता है? आप मुझसे आकर टकराई, मैं आपसे नहीं टकराया। अगर आपको इतनी ज़्यादा जल्दी थी जाने की तो दूसरी लिफ्ट से चली जाती, और इस तरह बिना देखे लिफ्ट में दाखिल होंगी तो किसी दिन लिफ्ट के डोर्स के बीच में ही फंस जाएंगी। ऊपर से आप मुझे तमीज़ सिखा रही हैं, पहले खुद तो सीख लें। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। जरनाब को शदीद गुस्सा आया कि कितना बदतमीज़ और बदतहजीब इंसान है। लिफ्ट बंद करते हुए बड़बड़ा रही थी, अब तो यहाँ नौकरी मिल गई, तब भी मैं नहीं करूँगी। लेकिन घर जाने तक उसका गुस्सा ठंडा हो चुका था, क्योंकि वो जानती थी कि उसे छोटी छोटी बातों की वजह से अगर वो हर चीज़ को इनकार करती रही तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसे मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत खुद में पैदा करनी होगी। वो खुद को किसी शहजादी से कम तो बिल्कुल नहीं समझती थी। अपने इलाके में तो वो किसी शहजादी की तरह ही रहती थी, लेकिन यहाँ पर ख्वार हो रही थी, वो भी सिर्फ एक नौकरी के लिए। उसे अपनी किस्मत पर हंसी आई। कई बार सोचती कि मैंने ऐसी जिद पाली ही क्यों, लेकिन फिर काम करने का जुनून उसके सर पर चढ़कर बोलने लगता। घर आकर उसने हानिया को बताया कि इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वापसी पर एक खड़ूस इंसान से मेरा टाकरा हो गया। एक तो इतनी ज़ोर से उसने मुझे टक्कर मारी, ऊपर से मुझसे ही बदतमीज़ी से बात कर रहा था और कह रहा था ध्यान से चलो वरना लिफ्ट में फंस जाओगी। हानिया उसकी बात सुनकर हंसी और कहने लगी, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तो ये टाकरा तुमने ही किया होगा, वो तुमसे नहीं टकराया होगा, क्योंकि तुम ही अंधों की तरह चलती हो, बिना आगे पीछे देखे। चलो खैर, तुम इन सबको भूल जाओ और ये सोचो कि जल्द ही तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, उम्मीद तो है। उसने उम्मीद भरे लहजे में इससे कहा। अभी वो इससे बात कर ही रही थी कि उसी वक्त उसके मोबाइल पर एक और कॉल आने लगी। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो उसकी अम्मा की कॉल थी। उसने हानिया को कहा, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, अम्मा गांव से कॉल कर रही हैं, पता नहीं अब क्या मसला हो गया, ज़रूर रिश्ते वाली बात ही होगी। हानिया बोली, ठीक है, मैं अभी अपने काम में मसरूफ़ हूँ, तुम उनसे बात कर लो। ये कहकर उसने कॉल कट कर दी। जरनाब ने सीधे होकर बैठकर फ़ौरन से अपनी अम्मा की कॉल उठाई। अभी उसने कॉल उठाई ही थी और सलाम दुआ भी नहीं की थी कि उसकी अम्मा फ़ौरन से नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई। जरनाब, अब तुम कब तक वहाँ पर रहोगी? तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं है, जल्दी से यहाँ वापस आ जाओ। तुम्हारे लिए बहुत रिश्ते आए पड़े हैं, अगर उम्र गुजर गई तो तुम्हें रिश्ते नहीं मिलेंगे। तुम शादी कब करोगी?
तुम्हारे बच्चे कब होंगे? मैं बिना तुम्हारे बच्चों को देखे इस दुनिया से नहीं जाना चाहती। हमेशा की तरह वो एक रटा रटाया सबक दोहरा रही थी और जरनाब भी ये सब सुन सुनकर पक चुकी थी। उसने अम्मा से कहा, अम्मा मुझे नौकरी भी मिलने वाली है, और रही बात मेरी शादी की, मैं उस जमाल के साथ तो बिल्कुल शादी नहीं करूँगी। ये बात आप पुप्पो से साफ साफ कह दें, और इस टॉपिक के अलावा अगर आपके पास कोई और बात है तो बता दें, वरना मुझे नींद आ रही है। मैं थक चुकी हूँ, रात को भी ठीक से सोई नहीं, और अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं। उठकर अपने लिए कुछ बनाऊंगी, उसके बाद आपसे बात कर लूँगी। ये कहकर बिना उनकी बात सुने उसने फ़ौरन से कॉल कट कर दी। वो जानती थी अगर वो कॉल पर रही तो उसकी अम्मा उसे अगले 1 घंटे तक शादी के बारे में ही लेक्चर देती रहेंगी। शादी के ऐसे फ़वाइद बताएंगी जो उसने अपनी ज़िंदगी में आस पास शादीशुदा जोड़ों में कभी नहीं देखे होंगे। उसकी अम्मा की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश इसकी शादी और इसके बच्चे देखना था। जरनाब को शादी से इनकार नहीं था, लेकिन वो जमाल से शादी करने का इरादा बिल्कुल नहीं रखती थी। और अब तो ये हालत आ गई थी कि उसकी अम्मी को जमाल भी बहुत अच्छा नजर आने लग गया था। इसने कई बार कहा था कि किसी अच्छी जगह मेरी शादी करें, लेकिन उसकी अम्मा कहती कि नौकरी करने वाली लड़कियों की शादियां नहीं होती। और यहाँ पर उसे ये सब देखकर काफ़ी हंसी आती थी कि यहाँ पर तो शादी के बाद ही बहुत सी लड़कियाँ जॉब शुरू करती हैं, क्योंकि आजकल घर का खर्चा अकेले चलाना नामुमकिन सी बात हो चुकी है। एक गहरी सांस लेते उसने अपना सर सोफे की पुष्ट से टिकाया और रिमोट उठाकर टीवी चला दिया। चैनल सर्फिंग करते करते जब वो बोर हो गई तो उठकर किचन में आ गई, अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। सुबह बिना नाश्ता किए ही चली गई थी और अब उसे भूख लग रही थी। नींद का तो उसने अपनी माँ से एक बहाना बनाया था, वरना अभी उसका सोने का इरादा नहीं था। बस उसे शिद्दत से फाइनल इंटरव्यू की कॉल का इंतज़ार था। और फिर 2 दिन उसने बहुत इंतज़ार किया। एक एक लम्हा उसका गोया कांटों पर गुजरा। उसके बाद उसे कंपनी से कॉल आ गई। जैसे ही कंपनी से कॉल आई वो दौड़ी हुई कंपनी पहुंच गई। फाइनल इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और ये इंटरव्यू भी फरहान ने ही लिया। उसे इतना समझ आ गया था कि फरहान एक खुश मिजाज इंसान है और हर एक से बहुत अच्छे से बात करता है। हालांकि वो इस कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर था और इसने तो सुन रखा था कि कंपनी उसके भाई की ही है। बॉस होने के बावजूद इसमें गुरूर बिल्कुल नहीं था। उनका प्रोजेक्ट हेड भी फरहान ही था, वो उसी के अंडर काम करने वाली थी। ये जानकर उसे बहुत खुशी महसूस हुई। वो जब से यहाँ पर आई थी उसने एक बार भी उस खड़ूस इंसान को नहीं देखा था। शुक्र था कि उससे मेरा सामना नहीं हुआ। शायद वो यहाँ पर काम ही ना करता हो, किसी काम से यहाँ पर आया हो। उसने दिल ही दिल में सोचकर खुद को तसल्ली दी। हानिया बहुत खुश थी कि अब उसकी जॉब लग गई है। उसके माँ बाप को गुस्सा आ रहा था कि उसने दोबारा से जॉब करना शुरू कर दी है। उसकी अम्मा ने अभी भी उसके रिश्तों की तलाश नहीं छोड़ी थी, बल्कि 2-3 बार इसके पास आकर खुद भी इसे तस्वीर दिखाई, जिन्हें इसने नज़रअंदाज कर दिया। अपनी नई जॉब से वो हद से ज़्यादा खुश थी और ये खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ नज़र आती थी। अक्सर ही फरहान के साथ वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी जाती थी। क्योंकि वो आर्किटेक्चर थी, इसीलिए उसे क्लाइंट के मुताबिक सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी होती थी। कभी कभी उन्हें साइट पर भी जाना पड़ जाता। एक बात जो उसने नोट की थी कि फरहान ने कभी भी इससे कोई गलत बात करने की या उसे गलत तरीके से देखने की कोशिश नहीं की थी। वो हमेशा फ्रेंडली अंदाज में बात करता, लेकिन एक लिमिट में रहकर। कभी भी किसी लड़की से गलत तरीके से पेश नहीं आया था। और यही वजह थी कि यहाँ पर लड़कियाँ बहुत ही अच्छे और कंफर्टेबल रहकर काम करती थीं। लेकिन अक्सर ही वो लड़कियों से सुनती थी कि हमारी कंपनी के असल बॉस बहुत ही खड़ूस इंसान है और काम में बहुत ज़्यादा सख्त हैं। उसने अब तक अपने रियल बॉस को नहीं देखा था। उसका ख्याल था कि बॉस कभी कभी ही कंपनी में आते हैं, लेकिन उसकी एक कुलीग ने इसे बताया था कि वो इस कंपनी की मेन ब्रांच में रहते हैं और वहीं से सब कुछ कंट्रोल करते हैं और यहाँ पर उनका मैनेजर फरहान ही सब कुछ देखता है। इसे काफ़ी हैरत हुई क्योंकि शुरू से लेकर अब तक वो यही समझ रही थी
कि यही कंपनी का मेन ब्रांच है। बहरहाल उसे इन सबसे क्या लेना देना, उसे तो अपनी जॉब पर फोकस करना था। फिर एक दिन साइट पर एक बहुत बड़ा मसला हो गया और वो प्रोजेक्ट इन लोगों के पास ही था। फरहान काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था। गलती इन लोगों की नहीं थी, लेकिन भुगतना इन्हें ही पड़ रहा था। हेडक्वार्टर से अर्जेंट मीटिंग की कॉल आई तो उन सबको वहाँ जाना पड़ा। जैसे ही मीटिंग रूम में वो लोग दाखिल हुए, सामने बॉस की कुर्सी पर बैठे उस खड़ूस इंसान को देखकर इसका मूड एकदम ख़राब हो गया। वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी और इसी वक्त आकिब की नज़र उस पर पड़ी। उसे अच्छे से याद था कि ये लड़की लिफ्ट में उससे टकराई थी और उसी पर इल्ज़ाम धर रही थी। उस दिन इसे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मीटिंग की वजह से वो वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद से उसने अपनी कंपनी में कदम नहीं रखा था, यहीं पर मसरूफ़ था और अब उसे देख रहा था। बहरहाल यहाँ पर फ़िलहाल प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी थी और उसे ही हल करने पर सबका फोकस था। मीटिंग वगैरह ख़त्म हुई तो जैसे ही वो सब जाने लगे, उसी वक्त आकिब शाह ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया और कहा कि मिस, यहाँ रुक जाएं। उसे इसका नाम नहीं पता था। फरहान ने फ़ौरन ही उसका नाम बताया। ये जरनाब है और न्यू ज्वाइनिंग है, मेरे ही अंडर काम कर रही हैं। आकिब शाह ने उसे इशारे से फरहान को भी वहाँ से जाने का कह दिया। जरनाब डर रही थी कि अब कहीं वो इसे जॉब से ही ना निकाल दे, क्योंकि उस दिन इसने जो बदतमीज़ी की थी उस वक्त तो इसे पता ही नहीं था कि ये कंपनी का बॉस है। अब वो परेशान हो रही थी कि वो इस जॉब को किसी सूरत खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि यहाँ काम करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही सब बाहर चले गए तो उसने फ़ौरन से कहा, देखिए मिस्टर, उस दिन मैं इस बारे में नहीं जानती थी कि आप कंपनी के बॉस हैं, और वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। फिर भी अगर आपको बुरा लगा हो तो सो सॉरी। ये कहकर वो वहीं पर खड़ी रही। आकिब शाह ने कहा, मैं इस बात को भूल चुका हूँ। बहरहाल हम नई शुरुआत करते हैं। मैंने आपका काम देखा है और वो काफ़ी अच्छा लगा है। मैं हैरान हूँ कि इतनी टैलेंटेड होकर भी किसी प्रोजेक्ट की हेड नहीं है। फरहान से बात करूँगा और आपको हेड बनाऊँगा। ये किसी पर्सनल रीज़न की वजह से नहीं है, बल्कि आपके टैलेंट की वजह से है। ये सुनकर जरनाब को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वो खुशी से गोया पागल होने लगी और बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं था कि वो एक टैलेंटेड लड़की थी, बस उसे कुछ पॉलिश की ज़रूरत थी। फिर फरहान ने आकिब शाह के कहने पर उसे प्रोजेक्ट हेड बना दिया। वो इस पोजीशन पर आकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो अपने तमाम जूनियर्स के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती थी। उसने फरहान से यही सीखा था। आहिस्ता आहिस्ता उसे फरहान बहुत पसंद आने लगा। फरहान उसमें दिलचस्पी लेता है या नहीं, उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो तो हर एक से फ्रेंडली ही बात करता था। इसीलिए वो उसके जज्बात का बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकती थी। लेकिन उसे फरहान में बहुत दिलचस्पी पैदा होने लग गई। एक दिन वो लोग कंपनी की तरफ से एक प्रोजेक्ट ख़त्म होने पर पार्टी पर गए थे। वापसी पर रास्ते में ही एक लड़का उसे बहुत परेशान करने लग गया। वहाँ अक्सर ही आवारा लड़के घूमते रहते थे। तभी एकदम से एक गाड़ी वहाँ पर आकर रुकी और उसमें से फरहान शाह निकला और उसने इसको बचाया और बाहिफाजत इसके घर पहुँचा दिया। उस दिन के बाद से तो उसका दिल उस पर पूरी तरह से लट्टू हो गया। वो दिन रात उसी के सपने देखती थी। वो जानना चाहती थी कि फरहान उसके बारे में क्या सोचता है। लेकिन फिर उन्हीं दिनों अचानक से उसकी अम्मा वहाँ आई और कहने लगी, बेटा अब बहुत हो चुका, हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है, और जहाँ तुम्हारा रिश्ता किया है वो लोग कह रहे हैं कि तुम शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रख सकती हो। उन्हें किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं। अब मैं तुम्हारे मुंह से ना बिल्कुल ना सुनूं। ये सुनकर गोया उसके सर पर कमरे की छत गिर पड़ी। उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि अम्मा यूं उसका रिश्ता पक्का कर देंगी। वो तो उनसे फरहान के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन तब तक नहीं कर सकती थी जब तक फरहान की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल ना मिलता। वो फौरन से हड़बड़ा गई, लेकिन उसकी अम्मा और उसके अब्बा दोनों ही इस बार उसे ढील देने को राज़ी नहीं थे। उसने सोचा, मैं एक बार खुद ही फरहान से बात कर लूँ।
हालांकि ये उसके लिए बहुत मुश्किल काम था। अगर वो इनकार कर देता तो इसके जज्बों की बेतौकीरी होती। लेकिन फिर उसने हिम्मत की और फरहान से बात करने का सोचा। लेकिन उस दिन जब वो ऑफिस आई तो देखा कि सब लोग खुशी मना रहे थे और मिठाई खा रहे थे। उसने हैरत से आकर अपनी एक कुलीग से पूछा कि आखिर ये खुशी किस चीज़ की। तो उसने बताया कि फरहान की मंगनी तय हो गई है और वो भी उसकी पसंद से। ये सुनकर वो लड़खड़ा कर रह गई। फरहान सामने ही खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। साफ लग रहा था कि ये मंगनी उसकी अपनी मर्जी से तय हुई है और वो अपने मंगेतर के साथ बहुत खुश है। उसी वक्त उसकी मंगेतर भी आती नजर आई। वो एक हाई फाई क्लास से ताल्लुक़ रखती थी। जरनाब भी कोई कम नहीं थी, लेकिन यहाँ बात पसंद की थी। फरहान तो उसे ही पसंद करता था। इस बात ने इसका दिल टुकड़ों में बिखेर कर रख दिया। घर आकर वो कई घंटे बैठकर रोती रही और ख़ुद को बेवकूफ़ कहती रही। फिर उसने अपनी अम्मा को इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वो नहीं जानती थी कि उसका रिश्ता कहाँ पर तय हुआ है और वो कौन लोग हैं, लड़के का नाम क्या है। वो कुछ भी नहीं जानती थी। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने उसने सिर्फ हाँ कर दी। उसकी अम्मा परेशान हुई कि इससे पहले तो वो पूरा शजरा नसब जानती थी और अब तो एक लफ्ज़ भी ना पूछा था। फिर वो खुश हो गई कि शुक्र है शादी के लिए हाँ तो की। दूसरी तरफ जरनाब ने एक लंबी छुट्टियों के लिए अप्लाई कर दिया और कहा कि मेरी शादी हो रही है, इसलिए मुझे लंबी छुट्टियां चाहिए। उसके बाद मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो आ जाऊंगी, नहीं तो मैं अपना रेजिग्नेशन दे दूंगी। ये कहकर वो वापस आ गई। फरहान ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि रेजिग्नेशन के बारे में क्यों सोच रही हो, तुम इतनी अच्छी और टैलेंटेड हो, आगे बढ़ सकती हो। लेकिन उसने फरहान को कोई जवाब नहीं दिया और अपना सामान पैक करके अपने अम्मा अब्बा के साथ अपने घर वापस आ गई। घर भर में खुशियों का राज था और शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। खूब धूमधाम से तैयारियां की जा रही थी। हवेली को बरकी कुमकुमों से सजाया गया था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। हालांकि उसकी पुप्पो नाराज भी हो रही थी कि तुम लोगों ने मेरे बेटे से शादी क्यों नहीं करवाई, लेकिन फिर भी वो इस शादी में शिरकत के लिए आई थी। दूसरी तरफ जरनाब अफसुर्दा सी बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। हानिया ने उसे बहुत पूछने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ है, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? तुमने खुद तो हाँ की है, तुम्हारे माँ बाप ने ज़बरदस्ती तो नहीं की, लेकिन अब यूं लग रहा है जैसे तुम्हें इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। चलो बताओ क्या बात है। लेकिन इसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और खामोश रही। बताती भी तो क्या बताती कि उसने एक पागलपन किया है, एक शराब के पीछे भागती रही और आखिर में उसे क्या मिला? बेतौकीरी। बहुत ही बेवकूफ़ हूँ मैं, वो ये सोचकर फूट फूट कर रोने लगी। हानिया उसके अब यूं रोने पर परेशान हो गई और उससे कहने लगी, जरनाब आखिर क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। उसके बार बार पूछने पर जरनाब ने उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनकर हानिया हक्का बक्का रह गई और कहने लगी, जो हुआ बेहतर हुआ, वरना तुम्हें बाद में मज़ीद टूटना पड़ता। लेकिन यूँ अचानक तुमने शादी का फैसला क्यों कर लिया? खुद पर जुल्म क्यों कर रही हो? कुछ वक्त ले लेती। चलो खैर, अब हम क्या कर सकते हैं, किसी को ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते कि हमसे मोहब्बत करे। ये तो एक फितरी जज्बा है, तुम्हें इस चीज़ को कबूल करना ही पड़ेगा। फिर वो कई घंटे इसे समझाती रही। जूं जूं शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, उसके दिल की उदासी बढ़ती जा रही थी। वो फरहान नाम का किस्सा अपने दिल से खरोंच कर फेंक देना चाहती थी, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। फिर उसने खुद को संभालने की कोशिश की, क्योंकि शादी में आए तमाम मेहमान बार बार एक ही सवाल कर रहे थे कि लड़की खुश नहीं लगती, लगता है माँ बाप ने ज़बरदस्ती की है या उसका कहीं और चक्कर चल रहा होगा। वैसे भी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करती थी ना, पता नहीं वहाँ क्या क्या करती रही होगी। वो जानती थी उसके माँ बाप को लोगों की बातों से कितनी तकलीफ़ पहुँच रही होगी, इसलिए उसने अपने आप को संभाल लिया। शादी की तकरीब में वो तैयार बहुत खूबसूरत लग रही थी। निकाह के वक्त जब उसने अपने दूल्हा का नाम सुना तो एकदम चौंक सी गई, लेकिन फिर सोचा कि ये नाम तो बहुत से लोगों का हो सकता है।
मुझे वो सब अब भूलना होगा, ये कहकर उसने खुद को मुतमईन किया। निकाह के बाद खाना वगैरह खुल गया और वो अंदर आकर बैठ गई। हानिया उसके पास ही बैठी थी। वो इसे मुसलसल समझाए जा रही थी। थोड़ी देर बाद रुखसती हुई तो वो अपने माँ बाप के गले लगकर रोने लगी। पता नहीं कौन कौन से दुख थे, नामुकम्मल मोहब्बत का दुख या घर छोड़ देने का दुख। बहरहाल उसने सारे के सारे दुखों पर एक साथ आंसू बहाए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ गई। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद वो एक बहुत बड़े बंगले के सामने आकर रुक गए। यहाँ भी बंगले को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। हानिया उसके साथ ही आई थी। सबने उसका शानदार इस्तकबाल किया और कुछ रस्मों के बाद उसे उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। वो ईमानदारी से अपने इस नए रिश्ते को शुरू करना चाहती थी। अब अपने दूल्हा का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और कोई उसके सामने आकर बैठ गया। उसने जालीदार घूंघट ओढ़ रखा था, इसीलिए उसे कुछ से ठीक नज़र नहीं आ रहा था और वैसे भी उसने नज़रें झुकाई हुई थी। लेकिन उसने अपना दिल उस वक्त मुट्ठी में जकड़ता हुआ महसूस किया। जब उसने अपने दूल्हा के चेहरे की तरफ देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस आकिब शाह ही था। इसे कुछ समझ नहीं आई कि वो क्या करे। उसे आकिब से बहुत डर लगता था। उसका पहला सामना ही उसके साथ बहुत बुरा हुआ था और उसके बाद वो मीटिंग में एक बार उससे मिली थी। उसके बाद तो वो फरहान के साथ ही काम करती थी। बहरहाल अब उसे फरहान का किस्सा मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना था। शादी में उसने आकिब के बहुत कम रिश्तेदारों को देखा था। उसकी माँ और उसकी पुप्पी ही वहाँ पर आई थी। बाकी किसी करीबी रिश्तेदार से इसका तारुफ नहीं हुआ था। इसने सुन रखा था कि यहाँ पर उसका एक देवर भी है, लेकिन वो अब तक उससे मिली नहीं थी। शायद वो शादी के इंतज़ामात में मसरूफ़ था। वैसे भी अभी तो पहली रात थी, आगे जाकर वो आहिस्ता आहिस्ता सबसे मिलने लग जाएगी। बहरहाल अगली सुबह जैसे ही वो तैयार होकर नीचे आने लगी तो आकिब ने उसे रोक लिया और कहा कि इतनी तैयारी किस लिए की है? तुम्हें पता नहीं कि घर में मेहमान भरे पड़े हैं? आइंदा तुम अगर इस तरह से दूसरों के सामने तैयार होकर कमरे से बाहर सजी सवरी आई तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। इस घर में सिर्फ मेरे उसूल चलते हैं और अब तुम आकिब शाह की बीवी हो, तुम्हें मेरे मुताबिक चलना होगा। उसने इसे ज़ोर से पकड़ रखा था। उसकी गिरफ्त बहुत ज़्यादा सख्त थी। इसे अपने बाजुओं में दर्द महसूस हो रहा था। इसकी आंखों में दर्द की वजह से आंसू आ रहे थे, लेकिन वो इसे छोड़ने के मूड में नहीं था। उसी वक्त ऊपर कमरे से आकिब का भाई निकलकर नीचे आ रहा था। उसने इन दोनों को देखा तो पहले तो जरनाब को देखकर वो चौंक गया। कल दुल्हन से मिलने का उसे वक्त ही नहीं मिल सका था और अब जब देखा तो अपने भाई का पागलपन देखकर परेशान हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता उसी वक्त उसने अचानक से इसे छोड़ा तो इसकी हील स्लिप हुई और इससे पहले कि वो लड़खड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे जा गिरती, उसी वक्त किसी ने उसे बेसाख्ता थाम लिया। जरनाब ने जैसे ही खौफ की वजह से अपनी आंखें खोली तो सामने फरहान को देखकर उसकी पूरी हस्ती हिलकर रह गई, क्योंकि उसके सामने खड़ा उसका देवर वही फरहान था जो एक लंबे अरसे से उसका प्रोजेक्ट हेड था और जिससे वो मोहब्बत करती थी। वो बेसाख्ता ही उसकी तरफ देखे जा रही थी। आकिब शाह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने फरहान और उसे झटके से अलग किया और फरहान को गुस्से से वहाँ से जाने के लिए कह दिया। फिर जरनाब को लेकर कमरे में आया और कहा कि किसके लिए इतना सज रही हो। जरनाब कुछ भी नहीं बोल पाई, खामोश रही। उसे इतना समझ आ गया था कि आकिब शाह बहुत ही जुनूनी इंसान है। एक दिन उसकी सास ने इससे कहा कि तुम्हें मेरे बेटे के मिजाज के बारे में अंदाज़ा नहीं, वो गुस्से का बहुत तेज़ है, लेकिन जल्द ही अपने गुस्से को ख़त्म भी कर लेता है। तुम अगर उसे नरमी से पेश आओगी तो वो ठीक हो जाएगा। दरअसल बचपन में उसने बहुत सी परेशानियों का सामना किया है। अपने अब्बा की मौत के बाद उसने ये कंपनी खुद खड़ी की और इस मुकाम पर पहुंचा है। उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। ज़िंदगी की मुश्किलात ने उसे बहुत ज़्यादा थका दिया है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। लेकिन वो क्या कहती, उसका दिल फरहान के लिए धड़कता था। वो उसे भुलाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन शादी के बाद वो इसके सामने आ गया, वो भी
इसके देवर के रूप में। ये बात उसके लिए किसी शौक से कम नहीं थी। फरहान से तो उसका रोज़ाना टाकरा हो जाता था। बेशक फरहान के दिल में इसके लिए कोई जज्बात नहीं थे और वो बिल्कुल ही अच्छे से बात करता था, लेकिन ना तो आकिब शाह को ये बात पसंद थी कि फरहान इससे मुखातिब हो और ना ही जरनाब उससे बात करना चाहती थी। फिर एक दिन जरनाब ने आकिब से कहा कि हमें कहीं और जाकर रह लेना चाहिए। आकिब ने बिना उससे कोई सवाल किए दूसरा घर ले लिया। उसके घर वाले इस बात पर राजी थे कि वो जहाँ भी शिफ्ट होना चाहे। उसने कहा, मैं दूसरे शहर में नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, बीवी को साथ ले जाकर वहीं रहूँगा। पता नहीं वो सब कुछ जानता था या नहीं, लेकिन जरनाब तो अपने आप को आकिब के साथ अच्छे से रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि आकिब के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी करे और फिर वो दोनों दूसरे शहर में आकर रहने लगे। एक दिन उन्हें फरहान की शादी का कार्ड मौसूल हुआ। आकिब ने इससे कहा, हमें शादी में जाना पड़ेगा, वो मेरा इकलौता भाई है और छोटा भी है। मैंने हमेशा उसका ध्यान रखा है। अगर तुम चाहो तो चलो और अगर ना चाहो तो बेशक मत जाओ। लेकिन अब जरनाब मैच्योर हो चुकी थी और इस सदमे से बाहर आ गई थी। उसने आकिब से कहा कि मैं ज़रूर जाऊंगी। गुजरे वक्तों में आकिब के साथ उसका रिश्ता बहुत बेहतरीन हो गया था। आकिब का गुस्सा भी बहुत कम हो गया था। उसने इसे मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया था। आकिब को देखकर किसी को भी यकीन नहीं आता था कि वो इतना खड़ूस इंसान अब बिल्कुल बदल कर रह गया है। बहरहाल वो एक लंबे अरसे के बाद उधर वापस आई थी। फरहान की शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। अब उसके दिल में फरहान के लिए कुछ भी नहीं था। वो उसके लिए बस उसका देवर था और कुछ नहीं, और वो उससे ज़्यादा रिश्ता कोई रखना भी नहीं चाहती थी। फरहान की शादी की सारी तैयारियां बखूबी हो गई। उन्होंने कुछ दिन वहीं रुकना था। इस दौरान वो अपनी अम्मा से भी जाकर मिल आई थी और हानिया से भी मुलाकात हुई थी। हानिया की शादी भी 1 साल बाद होने वाली थी। हानिया से जब वो मिली और हानिया ने उसे फरहान के बारे में सवाल किया तो इसने कहा कि वो किस्सा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और अब आकिब ही मेरी पूरी दुनिया है। अगर फरहान भी मुझे चाहता होता तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पर तो बात है एक शराब के पीछे भागने की। शुक्र है मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की। अब तुम देखो, तुम भी अपनी शादी के लिए बहुत खुश रहोगी, मेरी यही दुआ है। ये सुनकर हानिया को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि हद से ज़्यादा ज़िद्दी जरनाब इतनी बदल चुकी है। वाकई में शादी इंसान को बदल कर रख देती है और ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाती है। 2 लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी ज़िंदगियों में बदलाव ज़रूर आता है और ये उन दोनों पर मुनहसर होता है कि ये बदलाव अच्छा हो या बुरा। ये बात जरनाब को भी समझ आ गई थी और उसने अच्छाई को चूज़ किया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।